So guys, in this video lecture series, we are going to study the bioinformatics from I'm going to start the bioinformatics from first chapter of it so you can relate with it. So I am going to explain you everything. It is very important lecture for MSc students who are pursuing MSc in biotechnology or any other form of it is a post graduation level of classes. So for example, what is bioinformatics and computational biology is a subject we are going to cover today. So here, what is biological databases? First of all, what is bioinformatics? So bioinformatics is a wait a second. So bioinformatics is a information uses of information technology for accessing or storing and retrieving the biological information, like we are using biological information such as DNA sequence, protein sequence, structure of protein sequence, DNA, RNA, etc. So we use how we can use bioinformatics as a tool because these it is complex to study all the DNA sequence, protein sequence, and retrieve their data from library itself. So it is a kind of tech library, uh, software library in our phones or laptops on the web server, so we can easily access them and we can store the large amount of input of biological data. Because biological data is not small, we need to store them. It is going to store the information of biological information very easily, like large complex data. And these biological databases are organized collection of biological data such as this is an organized collection of biological data and such as DNA sequence, protein sequence, structures, and functional annotations. We and they are essential for storage, retrieval, and analysis of biological information. Easy for essential for storage, retrieval. We can easily download the PDF or PDB format from their sites. NCBI, www.ncbi.nih.nlm.gov. This is a government site of biotechnology students for bioinformatics. So, analysis of biological information. What we can do from this uh, tech version information, biological information, we can compare or analysis them. We can do the analysis of them, supporting genomics. So it is going to support the genomics subject. We can easily relate to genomics, proteomics, and drug discovery. What is characteristics of biological databases? Biological databases are those databases who store the information of biological substances. Biological database इज मतलब डाटा जहाँ पर हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं. कौन सा डाटा स्टोर कर रहे हैं? बायोलॉजिकल डाटा such as protein, DNA, RNA, etc. So first characteristics of that is large and rapidly expanding. So this is uh, this can merge volume of data due to high throughput sequencing technology. ये क्या कर देता है? ये मर्ज कर देता है वॉल्यूम, मतलब बहुत सारा डाटा एक ही जगह पर स्टोर कर दिया हमने. लार्ज डाटा रैपिडली एक्सपेंडिंग, एक ही जगह पर स्टोर कर दिया एक टेक्नोलॉजी की वजह से, कंप्यूटेशनल हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी की वजह से. सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन. सो डाटा इज स्टोर्ड इन स्पेसिफिक फॉर्मेट्स. डाटा किस किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं? फास्टा फॉर्मेट में, GenBank में, etc. This is a formats in which we can store the sequences or structures. So annotated data.
इंक्लूड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर एवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, एनोटेटेड डाटा इज़ अ डाटा जिसमें हम उस जिस लाइक फॉर एग्जांपल हमें एक प्रोटीन सीक्वेंस है, हमें उसका फंक्शन भी पता है, उसके बारे में स्ट्रक्चर भी पता है, उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में भी पता है कि वो कैसे इवॉल्व हुआ है, उसको हम बोलते हैं एनोटेटेड डाटा, जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है सारी की सारी। और फोर्थ करेक्टरिस्टिक है कि इंटरकनेक्ट कर देते हैं, लाइक क्रॉस रेफरेंस बिटवीन डाटाबेसेस। क्रॉस रेफरेंस मतलब लाइक NCBI, DNA डाटा बैंक ऑफ जापान, ये आपस में क्रॉस लिंक्ड हैं, मतलब क्रॉस रेफरेंस देते हैं। ये DNA डाटा बैंक ऑफ जापान ये एक दूसरे के बीच में जो इंफॉर्मेशन होती है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस रेफरेंस हो जाती है बिटवीन डाटाबेसेस के बीच में, इंटरकनेक्ट कर देते हैं हम। लाइक इंडिया का डाटाबेस जापान के डाटाबेस के साथ कनेक्टेड है, तो क्रॉस रेफरेंस कर सकता है डाटाबेसेस की। लाइक पब्लिकली एक्सेसिबल, देखो ये सोर्स है, लाइब्रेरी है एक तरह की, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है, ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, ये फ्रीली अवेलेबल है फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए, और जनरली पब्लिकली अवेलेबल है ये। एग्जांपल INDC डाटाबेस एग्जांपल है, याद रखें। अपडेटेड रेगुलरली, देखो ये अपडेट होते रहते हैं रेगुलरली, सच एज कॉन्टीन्यूस डाटा सबमिशन एंड क्यूरेशन, मतलब हम डाटा देते जाते हैं तो ये अपडेट होते रहते हैं। और एंड क्यूरेशन, अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको क्यूरेट भी करते रहते हैं, ठीक भी करते रहते हैं, तो क्यूरेशन भी साथ के साथ चलती है। तो डाटा रिडेंडेंसी, जो कुछ डाटाबेसेस हैं जहाँ पर सम सीक्वेंस में अपीयर मल्टीपल टाइम्स। डाटा रिडेंडेंसी मतलब कुछ चीज़ें ऐसा होती हैं कि एक ही सीक्वेंस बार बार रिपेयर होता है, उस डाटा रिडेंडेंसी है कि वो शो करता है कि हाँ ये डाटा इसमें भी यूज़ हो रहा है, ये बायोलॉजिकल सीक्वेंस इसमें भी यूज़ हो रहा है, ये इसमें भी हो रहा है, ये इसमें भी हो रहा है। और क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाटाबेसेस, हम बायोलॉजिकल डाटाबेस को कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो हम प्राइमरी डाटाबेस, सेकेंडरी डाटाबेस, कंपोजिट डाटाबेस, स्पेशलाइज्ड डाटाबेस, ऐसे करके ये दिस इज अ टाइप्स ऑफ डाटाबेसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी प्राइमरी डाटाबेसेस। प्राइमरी डाटाबेसेस वो सीक्वेंसेस हैं जो रॉ हैं, मतलब रॉ डाटा है जिसके पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है, न्यूक्लियोटाइड्स का, प्रोटीन्स का, और विदाउट एक्सटेंसिव एनालिसिस, उसमें कुछ भी एक्सटेंसिव एनालिसिस नहीं किया हुआ है, जैसे INSDC, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेसेस। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस है, जिसमें क्या होता है, इंटरनेट डाटा सीक्वेंस कोलैबोरेशन इंक्लूड जेनबैंक, EMBL, EBI, DDBJ, ये यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी है, EMBL। ठीक है, जेनबैंक इज अ न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस। दिस इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी, जहाँ पर रॉ इन्फॉर्मेशन है, रॉ इन्फॉर्मेशन है जो कि एक्सटेंसिवली स्टडी नहीं हुई है, उसकी जेनबैंक, EML, EMBL, DDBJ, INSDC। और फीचर्स बताएं हम प्राइमरी के, तो वो डायरेक्ट सबमिशन कर लेते हैं बाय रिसर्चर्स, मिनिमल एनोटेशन होती है और हाई रिडंडेंसी। मतलब देखो, हम सीक्वेंस जो है साइट पर जाकर, NCBI की साइट पर या फिर INDC की साइट पर जाकर डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं, सबमिशन हो जाती है रिसर्चर्स के द्वारा। मिनिमल एनोटेशन करनी पड़ती है उसमें, मतलब हमें उस सीक्वेंस के बारे में जो मिनिमल एनोटेशन करनी पड़ती है, और मतलब उसके बारे में मिनिमल इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है। हाई रिडंडेंसी,
मतलब वो सीक्वेंस बार बार और डाटाबेस में यूज़ होगा आगे। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि फाउंडेशन फॉर ऑल बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस, ये एक फाउंडेशन है ऑल बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस के लिए। इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा सच एज हमने सबमिशन की प्राइमरी डाटाबेस में, सच एज किस इंफॉर्मेशन की सबमिशन की, डीएनए प्रोटीन सीक्वेंस स्टोर, और इसमें वो स्टोर हो गए। अब हम स्टैंडर्डी डाटाबेसेस की बात करें तो वो डिराइव्ड डाटाबेसेस हैं। डाटाबेस इज डिराइव्ड फ्रॉम एनालिसिस ऑफ प्राइमरी डाटाबेसेस। देखो प्राइमरी को हमने विदाउट एनालिसिस किया था, जब हम प्राइमरी का एनालिसिस कर लेंगे तो वो सेकेंडरी डाटाबेसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंटेनिंग मोटिव्स, उनमें मोटिव होंगे, डोमेन्स होंगी, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल साइट्स होंगी। एग्जाम्पल प्रो साइट एक डाटाबेसिस है जो सेकेंडरी डाटाबेस है, जो कि हाईली क्यूरेटेड है, जो नॉन रिडंडेंट है, जो एक ही चीज़ को बार बार नहीं दोहराएगा, जो कि फंक्शनल इंटरप्रिटेशन शो करता है फीचर्स। फॉर एग्जांपल हाईली क्रिएटेड है, नॉन रिडंडेंट है, फंक्शनल इंटरप्रिटेशन है, इनमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोटीन की फैमिलीज़ को, फंक्शनल रीजन्स को। अब देखो प्राइमरी डाटाबेस आया, उसका एनालिसिस किया, प्राइमरी डाटाबेस का एनालिसिस किया तो मोटिव और पैटर्न्स मिल गए हमें। उस मोटिव और पैटर्न्स को जिस जगह स्टोर करते हैं उसको हम सेकेंडरी डाटाबेस बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डाटाबेस इज कॉम्पोजिट डाटाबेस क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग मल्टीपल प्राइमरी डाटाबेसेस। देखो जब हम कंबाइन कर दें मल्टीपल डाटाबेसेस को, तो हम उसको मल्टीपल प्राइमरी डाटाबेसेस को उसमें से रिमूविंग कर दें रिडंडेंसी की, तो हम कंपोजिट डाटाबेस का बना लेते हैं। उसकी एग्जांपल है यूनिपॉड। यूनिपॉड कंपोनेंट्स क्या हैं यूनिपॉड के, कि यूनिपॉड केवी नॉलेज बेस्ड होता है, स्विस प्लॉट रिट्रीव्ड होता है, ट्रिम्बल ट्रिम्बल अनरिव्यूड है। ये एग्जांपल्स कंपोनेंट है यूनिपॉड के। तो इसके फीचर्स क्या हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, एनोटेटेड है, नॉन रिडंडेंट है। इम्पॉर्टेंस क्या है कि वाइडली यूज़ करते हैं हमें सिर्फ इसका प्रोटीन एनालिसिस करने में। कौन सा? कंपोजिट डाटाबेसेस, फॉर एग्जांपल यूनिपॉड। देखो कंपोजिट डाटाबेसेस में डी जेनटैक प्लस एमडीएल प्लस डीडीबीजे, न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी, डीडीबीजे डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान को हमने कंबाइन कर दिया और उसकी इंटीग्रेशन बना दी, तो उसको बोलेंगे कंपोजिट डाटाबेस, फॉर एग्जांपल यूनिपॉड। अब आए स्पेशलाइज्ड डाटाबेस। स्पेशलाइज्ड डाटाबेस वो डाटाबेस हैं जो फोकस करते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ बायोलॉजिकल डाटा के ऊपर और फंक्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ एंजाइम के बारे में देखा है तो एंजाइम का अलग से डाटाबेस बन गया, तो वो एक स्पेशलाइज्ड डाटाबेस है जिसमें सिर्फ एंजाइम के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। फीचर्स क्या है इसके? स्पेसिफिक फोकस ऑन फोकस, डिटेल क्लासिफिकेशन, एग्जांपल एंजाइम, स्पेशलाइजेशन ऑन एसी नंबर, एंजाइम का ईसी नंबर, one useful for metabolic pathways enzyme studies। स्पेशलाइज्ड डाटाबेसेस में स्पेसिफिक डाटा ही स्टोर होता है एंजाइम के लिए। स्पेशलाइज्ड डाटाबेस एग्जांपल है। अब हम कंपैरिजन पर आए इसके। प्राइमरी में रॉ सीक्वेंस होता है, एग्जांपल आईएनडीसी इंटरनेशनल सीक्वेंस, इंटरनेशनल सीक्वेंस डाटा कोलैबोरेशन। तो यहाँ पर इसका फीचर है कि हाई रिडंडेंसी है। सेकेंडरी प्रोसेस डाटा होता है, प्रोसाइट फंक्शनल इंफॉर्मेशन बताता है। कॉम्पोजिट कंबाइंड डाटा होता है, एग्जांपल यूनिपॉड, नॉन रिडंडेंट होता है। स्पेशलाइज्ड में स्पेसिफिक डाटा होता है, फॉर एग्जांपल एंजाइम एंड फोकस होता है। एप्लीकेशन पे आया, एप्लीकेशन में सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जीन प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी कर सकते हैं, एवोल्यूशनरी स्टडी कर सकते हैं। कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है? बायोलॉजिकल डाटाबेसेस आर फंडामेंटल टूल्स। कौन से टूल हैं? फंडामेंटल टूल्स हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के। Efficient that enables efficient storage, retrieval, and analysis of biological data. Their classification into primary, secondary, composite, specialized databases helps researcher access and interpret biological information effectively.
तो रिसर्चर्स इंटरप्रेट कर सकते हैं बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली। हम मूव करें नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो आई थिंक इससे पहले आपको वेट अ सेकंड सीक्वेंस एनालिसिस करवा देती हूँ। सीक्वेंस एनालिसिस इसके बाद मल्टीपल सीक्वेंस एनालिसिस कर जाएंगे, अलाइनमेंट कर जाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स ये वाला चैप्टर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की इंट्रोडक्शन एंड गोल्स एंड एप्लीकेशन, रोल एंड रोल ऑफ कंप्यूटर्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में रोल कंप्यूटर क्या कर रहे हैं ये एक बार समझ लेंगे तो इसके बाद के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो introduction. Bioinformatics is an interdisciplinary science that integrates biology, computer science, mathematics, statistics, and information technology to store, retrieve, and analyze, interpret biological data. इंट्रोडक्शन में क्लियर है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स मल्टीडिसिप्लिनरी है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डाटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए and biological data. The rapid advancement of technology such as DNA sequence. हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी को रैपिड एडवांसमेंट कर सकते हैं। हमने डीएनए की सीक्वेंस करवाई प्रोटियोमिक्स एंड जीनोमिक्स के लिए एंड हैज़ जनरेटेड न्यूमरस अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। हमने बहुत सारा बायोलॉजिकल डाटा ले लिया, उसको एक्सेस पा पाए, उसको स्टडी कर पाए, तो हम उसको मैनेजिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग फुल हो जाता है। हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन उससे। तो दिस डाटा लेट द डेवलपमेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो ये इस डाटा ने बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेवलपमेंट की। फॉर एग्जांपल बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल टूल्स एंड टेक्निक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? एक एप्लीकेशन है कंप्यूटेशनल टूल्स की और टेक्निक्स की एंड मैनेजमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। Bioinformatics application of computational tool and technique, the management and analysis of biological information, particularly molecular data. हम किसकी इंफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं? मॉलिकुलर डाटा, जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाएं तो डेवलपमेंट ऑफ एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बन रहा था तो इसकी डेवलपमेंट एक्सेलरेट हुई। तो नीड ऑफ डाटाबेसिस एंड एल्गोरिथम टू एन जीनोम सीक्वेंसिंग। हमें एक ज़रूरत है डाटाबेसिस की और एल्गोरिथमिक प्रोग्राम्स की, ताकि हम जीनोम की स्टडी कर सकें, जीनोम सीक्वेंसेस की स्टडी कर सकें। उसके बाद गोल्स क्या है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के? डाटा को कलेक्ट करना, स्टोर करना, एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ लार्ज स्केल बायोलॉजिकल डाटा। इसमें क्या क्या था? डीएनए सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस, जीन एक्सप्रेशन डाटा। अब डाटाबेसेस कौन से हैं? डी जेनबैंक, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। जेनबैंक में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, EMBL में बता चुके हैं, DDB, JPDB, प्रोटीन डाटा बैंक फॉर 3D स्ट्रक्चर। हम इस प्रोटीन PDB को यूज़ करते हैं प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए। डाटा रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट, हमें इजीली एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं डाटा को। सर्च टूल्स का यूज़ करते हैं हम लोग, गर्ल सिस्टम एग्जाम्पल, कीवर्ड सर्च, एक्सेशन नंबर। सीक्वेंस एनालिसिस, सीक्वेंस को एनालिसिस करने के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स एंड कोडिंग रीजन। हम देखो जो जीन है सीक्वेंस की, फॉर एग्जाम्पल दिस इज डीएनए सीक्वेंस। हम डीएनए सीक्वेंस में जो जीन्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना और कोडिंग रीजन। जीन में जो कोडिंग रीजन है, फॉर एग्जाम्पल ये जीन था AUG, इसके कोडिंग रीजन्स पता चल जाएंगे हमें। ये कोड कर रहे हैं ये जीन को, इस जीन का ये फंक्शन है कि ये स्टार्ट करता है जो भी है। एंड डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, हम म्यूटेशन को डिटेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक सीक्वेंस दिया, सीक्वेंस को एनालिसिस किया। फॉर एग्जांपल कोई कैंसर पेशेंट का सीक्वेंस था, उनका डीएनए हमने स्टडी करने की कोशिश की, तो उसमें देखा कि
नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, टी सी सॉरी AUG नहीं, ATG AGC। तो ये ऐसा होगा, A T के साथ बाइंड होगा, T A के साथ, G C के साथ। और यहाँ पर म्यूटेशन आ गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हो गया, AG। तो यहाँ पर A के साथ A ही लग गया फॉर एग्जांपल, और G के साथ C और A के साथ T। तो ये म्यूटेशनल होगी ना, ये वाले रीजन पे, ये जीन के कोडिंग रीजन पे म्यूटेशन आ गई। तो हम सीक्वेंस को जब ऐसी सिमिलैरिटी के साथ स्टडी करते हैं तो हमें पता लग जाता है कहाँ पर म्यूटेशन है। हैंड सीक्वेंस की अलाइनमेंट, सीक्वेंस को जब हम अलाइंड करेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये फीचर्स पता चल जाएंगे। और स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, मैंने पहले भी बता दिया, हम किसी भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन फोल्डिंग एंड फंक्शन, फंक्शनल एनोटेशंस। असाइन करता है बायोलॉजिकल रोल्स टू जीन्स एंड प्रोटीन्स, क्या बायोलॉजिकल रोल को असाइन करता है जीन एंड प्रोटीन्स। आइडेंटिफाई पाथवेज एंड इंटरेक्शन, पाथवेज एंड इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करता है। एवोल्यूशनरी एनालिसिस, हम स्टडी कर सकते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यूजिंग सीक्वेंसेस ऑफ सिमिलैरिटी। कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं फाइलोजेनेटिक फेज की ड्रग डिस्कवरी एंड डिज़ाइन में यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग टारगेट्स। मॉलिकुलर डॉकिंग कर सकते हैं, वर्चुअल स्क्रीनिंग करते हैं। रिड्यूस करता है कॉस्ट एंड टाइम इन ड्रग डेवलपमेंट, देखो ड्रग डेवलपमेंट में इजी होती है इसके वजह से। सिस्टम बायोलॉजी, सिस्टम स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन बिटवीन जीन से प्रोटीन की मेटाबॉलिक पाथवेज तक। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल सिस्टम सच एज होल। अब इसकी एप्लीकेशन देख लो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, जीनोमिक्स में जीनोम की सीक्वेंसिंग, एनोटेशन में आइडेंटिफिकेशन, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स, प्रोटियोमिक्स में प्रोटीन स्ट्रक्चर, फंक्शन, इंट्रैक्शन, प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन के नेटवर्क चेक करना, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, टारगेट आइडेंटिफाई करके उसके लीड कंपोनेंट को, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना एंड सिमुलेशन करना ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन की। पर्सनलाइज मेडिसिन, हमने एनालिसिस कर लिया जेनेटिक वेरिएशंस का, मैंने पहले भी बताया, हमने जेनेटिक वेरिएशंस देख ली, सर म्यूटेशन देखी हमने, तो डेवलपमेंट कर लिया हमने पेशेंट से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कि इस पेशेंट को इसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये इस मेडिसिन से नहीं ठीक हो पाएगा, तो हमने उसकी पर्सनलाइज मेडिसिन डेवलप कर दी। एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी में क्रॉप की इम्प्रूवमेंट के लिए क्रॉप के सीक्वेंसेस को हमने देखा, एनालाइज किया, डिजीज रेजिस्टेंट फ्लावर बनाया, GMO जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड GMO जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, कंपैरेटिव जीनोमिक्स, अब हमने जीनोमिक्स के जीन्स को कंपेयर कर दिया एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए, फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फोरेंसिक साइंसेस, DNA फिंगरप्रिंटिंग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल, क्रिमिनल केसेस, ठीक है, ये क्रिमिनल केसेस, डिजीज एंड डायग्नोसिस एंड रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, बायोमार्कर डिस्कवरी, स्टडी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, computers are the foundation of bioinformatics enabling the handling complex biological data। तो कंप्यूटर एक फाउंडेशन है जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एनेबल करता है हैंडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डाटा। इसमें डाटा स्टोरेज हो सकता है, लार्ज स्केल डाटाबेस स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो क्या है कंप्यूटर का रोल, ये याद रखो, डाटा को स्टोर करता है, डाटा रिट्रीव करता है। डाटा स्टोर करता है क्योंकि हाई कैपेसिटी है, स्टोरेज सिस्टम क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा है, वास्ट अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल डाटा स्टोर कर सकते हैं, डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। देखो लाइब्रेरी में जाके बुक से पढ़ना, देखो अगर मुझे लाइब्रेरी जाना हो इसको उठाने के लिए, मतलब ये कॉपी को स्टडी करने के लिए, तो मुझे मेहनत लगेगी और मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ पर है। लेकिन अगर मैं फ़ोन पर जाऊँगी, वेब सर्वर पर जाऊँगी, सर्च करूँगी अपने सीक्वेंस का नाम, तो वो मेरे लिए इजीली एक्सेसिबल होगा। तो ऐसे ही ये फास्ट मेथड है
एफिशिएंट सर्चिंग ऑफ डाटाबेसेस यूज कहाँ पर सर्च कर सकते हैं हम? डाटा रिट्रीव कर सकते हैं ब्लास्ट फॉर्म में, फास्टा फॉर्म में। सीक्वेंस को अलाइनमेंट करना और एनालिसिस करना, परफॉर्म पेयर वाइज और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। पेयर वाइज में क्या होता है, हम एक सीक्वेंस को एक सीक्वेंस के साथ ही अलाइन करते हैं। मल्टीपल में हम एक सीक्वेंस को बहुत सारे सीक्वेंस के साथ अलाइनमेंट में करते हैं, एनालिसिस करते हैं। डायरेक्ट सिमिलरिटीज, म्यूटेशन पता चल जाती है, कंजर्वेशन क्या है वो पता चल जाते हैं। एल्गोरिथम डेवलपमेंट, देखो डेवलपमेंट फॉर कंप्यूटर एल्गोरिदम्स फॉर, हमने एक ऐसे एल्गोरिदम बना लिए हैं जो हमें सीक्वेंस को अलाइनमेंट करके देते हैं, स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन करके देते हैं, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करके देते हैं। स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स, हम मॉलिक्यूलर की मॉडलिंग कर लेंगे, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर लेंगे, डॉकिंग कर लेंगे। मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड मॉडलिंग, हम देखो अगर प्रोटीन का कोई पहले कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था तो हमने कंप्यूटर में उसका मॉडल चेंज कर दिया और कुछ ऐसा दिखा दिया, तो हम हमें पता चल जाएगा कि अगर ये ऐसा कंप्यूटर में बनेगा तो हम रियल लाइफ में इसके क्या क्या फंक्शन चेंज हो जाएंगे, तो हम उसके हिसाब से डॉकिंग कर लेते हैं। म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं खुद से भी। सिमुलेशन ऑफ मल्टीपल इंट्रैक्शन, डाटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स, हैंडलिंग लार्ज डाटा सेट यूजिंग स्टैटिस्टिक्स टूल, डाटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग। विजुअलाइजेशन टूल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, देखो प्रोटोमिक्स का 3D स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, जैसे मैंने बताया। जीनोम मैप्स, मेटाबॉलिक पाथवेज हमें पता चल सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं हाई थ्रूपुट एनालिसिस से। रेपिटेटिव टास्क की, देखो जो हमें बार बार करना पड़े हमने उसको ऑटोमेट कर दिया कि वो खुद से हो। एनालिसिस कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डाटा। स्टिमुलेशन मॉडलिंग, देखो मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स की स्टिमुलेशन करवा दी कंप्यूटर पे एज अ गेम की तरह समझ लो, हमने करके देख लिया कि अगर हम ये चेंज करेंगे, ये म्यूटेशन कॉज करेंगे तो ये क्या रिजल्ट देगा, तो वो हम सिमुलेशन की तरह गेम में कंप्यूटर में कर लिया। सिस्टम बायोलॉजी की मॉडलिंग कर ली। इंटीग्रेशन ऑफ डाटा, कंबाइन कर दिया हमने डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मल्टी इंटीग्रेशन, देखो अगर बुक से कंबाइन करने चाहती तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते, कंप्यूटर से डाटा कंबाइन करने में इजी रहता है। एडवांटेजेस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, देखो एडवांटेजेस क्या है कि रैपिड एनालिसिस करता है लार्ज डाटा सेट का एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव होता है कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है, फैसिलिटेट्स इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। लिमिटेशन क्या है इसकी, रिक्वायर्स कंप्यूटेशनल एक्सपर्टीज, देखो वो इंसान इसको कर पाएगा जिसको कंप्यूटर चलाना आता होगा या वो इस फील्ड में एक्सपर्ट होगा। डिपेंडेंट ऑन डाटा क्वालिटी, अब ये जो है डाटा की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। प्रिडिक्ट कर सकता है, नीड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, जो ये प्रिडिक्ट करता है उसकी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन भी चाहिए हमें। देखो मैंने कुछ ऐसा कर दिया प्रोटीन का सक्रिय ऐसे ही कंप्यूटर में, तो मुझे ये एक्सपेरिमेंट लैब में प्रेडिक्ट करके देखना पड़ेगा। ऐसे ही इसकी इंफॉर्मेशन पे मैं रिलाई नहीं कर सकती प्रॉपरली। अब हम देखेंगे ये ना ह्यूरिस्टिक मेथड होते हैं, स्कोरिंग मैट्रिक्स, बट ये आपको तब समझाएंगे जब आप सीक्वेंस एनालिसिस देख लोगे एक बार। लेट मी गो टू सीक्वेंस एनालिसिस पार्ट एंड देन देखो सीक्वेंस एनालिसिस एक कंप्यूटेशनल एनालिसिस ऑफ स्टडी बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस such as DNA, RNA, protein to understand their structure and function, evolution. देखो the with the advent of high throughput data sequences technology, vast amount of biological data and generated and making sequences analysis core component of bioinformatics। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम एक सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस के साथ क्यों एनालिसिस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पेन है मेरे पास, इसी तरह का मेरे पास सेम पेन है तो मैं सेम पेन है मेरे पास, फॉर एग्जांपल वेट अ सेकेंड,
आई विल शो यू द एग्जांपल। देखो ये दो पेन हैं, बिल्कुल सेम है, सेम है ना, ऐसे ही सीक्वेंस होते हैं। इसको हटा देती हूँ। ये दो पेन हैं जो बिल्कुल सेम है, तो ये फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए सीक्वेंस है और ये दूसरा डीएनए सीक्वेंस है। अब इनको हमने इन दोनों को अलाइनमेंट में लिया है, हमने इन दोनों को ऐसे ही अलाइन किया, लाइक ऐसे शुरू से ये पार्ट इससे मैच होता है नहीं, ये यहाँ से मैच होता है नहीं, यहाँ से होता है नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से होने लगा, यहाँ से पूरा पूरा मैच हो रहा है, पूरा पूरा मैच हो रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इसकी रीजन्स ऑफ सिमिलैरिटी क्या है। यहाँ पर सिमिलर है, यहाँ पर पूरा सिमिलर है, यहाँ पर 100% सिमिलर है। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे रखूँ तो इसकी सिमिलैरिटी चेंज हो जाएगी, तब ये पूरी तरह सिमिलैरिटी शो नहीं कर पाएगा कि हाँ मैं बिल्कुल सिमिलर हूँ। अगर मैं इसकी जगह इसको इसके साथ अलाइन करना चाहूँ तो मुझे रीजन्स ऑफ सिमिलैरिटी भी दिखेंगे और रीजन ऑफ डिसिमिलैरिटी भी दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डिसिमिलर, दिस इज ऑल्सो डिसिमिलर, दिस इज ग्रीन, दिस इज रेड। सो ऐसे करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीन्स को, डीएनए के जीन्स को, कोडिंग रीजन्स को। हम म्यूटेशन चेक कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म चेक कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कंपैरेटिव जीनोमिक्स के साथ, एवोल्यूशनरी एनालिसिस के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंजर्व्ड मोटिव्स। देखो ये कंजर्व्ड रीजन है, पहली स्पीशीज में भी ये सेम रहा, दूसरी स्पीशीज में फॉर एग्जांपल सेम रहा, तो ये कंजर्व्ड रीजन है जो ऐसा ही रहेगा बाकियों के लिए भी। तो दिस इज अ कंजर्व्ड रीजन, कंजर्व्ड मोटिव एंड डोमेन। अब सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के मेथड कौन से होते हैं? बेस्ड मेथड देयर, दिस मेथड कंपेयर सीक्वेंस टू डिटेक्ट सिमिलैरिटी। देखो सिमिलैरिटी ही चेक करने के लिए हम सीक्वेंस को अलाइन करते हैं। हम फंक्शनल सिमिलैरिटी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन दोनों का फंक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, इन दोनों का फंक्शन सेम होगा, ये भी एक पेन है, ये भी एक पेन है, दोनों लिखने के काम आएंगे, फंक्शन सिमिलैरिटी हो गया। स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की बात करूँ तो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी में ऑलमोस्ट ये भी पेन है, ये भी पेन है, बट ये ग्रीन कलर पेन है, ये रेड कलर पेन है, दिस इज अ डिफरेंस। और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में देखेंगे कि पहले पेन कैसे बना, उस पेन से ये कैसे इवॉल्व हो गए, वो हम देखेंगे। मतलब पेन नहीं देखेंगे, जनरली मैं डीएनए की बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल पेन से समझा रही हूँ कि हम ऐसा डीएनए के साथ, प्रोटीन के साथ, आरएनए के साथ कर रहे हैं। देखो टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट होती है, पेयर वाइज अलाइनमेंट, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। पेयर वाइज में सिर्फ हम दो ही चीज़ों को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, ये पेयर वाइज अलाइनमेंट होगी, 2 सीक्वेंस। अब मैं इनके साथ तीसरा और कंपेयर करने लग जाऊँ, ये हो गई पेयर वाइज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। इन तीनों को कंपेयर करूँ, 3 से ज़्यादा को करूँ, 2 से ज़्यादा को करूँ। डाटाबेस सर्च मेथड, द मेथड ऑफ कंपेयर अ क्वेरी सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई क्वेरी, क्वेरी मतलब जो सीक्वेंस मुझे नवा मिला है, मैं जिसको सर्च करके जिसको सिमिलैरिटी चेक करना चाहती हूँ लार्ज डाटा बेसिस के अगेंस्ट। तो ये इतने सारे मेरे पास ये मेरा लार्ज डाटा सेट है पूरा का पूरा, ये सारा। तो मैं इसको कंपेयर करना चाहती हूँ इसके साथ, मैं देखना चाहती हूँ ये मेरे क्वेरी सीक्वेंस की डाटाबेस में ऑलरेडी सबमिटेड सीक्वेंस के साथ कितनी सिमिलैरिटी है। तो मैं उसके लिए ब्लास्ट यूज़ करूँगी। ब्लास्ट इज एल्गोरिथमिक प्रोग्राम, उसको हम बोलते हैं बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, ये लोकली इसको क्वेरी सीक्वेंस को सबके साथ अलाइन कर देगा। और फास्टा भी यही सिमिलैरिटी का काम करता है।
इसका वर्किंग प्रिंसिपल की है कि इसने ब्रेक सीक्वेंस इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट। फॉर एग्जांपल ये दिस इज माय क्वेरी सीक्वेंस, मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया। फॉर एग्जांपल मेरी क्वेरी सीक्वेंस बहुत लंबा था, मैंने उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ लिया। लाइक फॉर एग्जांपल ये पार्ट, मैं इस पार्ट को कंपेयर करूँगी विद डाटा बेसिस सीक्वेंसेस, आइडेंटिफाई स्टैटिक्स, मैंने तोड़ तोड़ के कंपेयर कर लिया सबके साथ, तोड़ के साथ फॉर कंपेयर किया। लाइक मेरा ये एक पूरा सीक्वेंस था, मैंने तोड़ तोड़ के कंपेयर किया दूसरे बायोलॉजिकल डाटाबेसेस के साथ, तो ये इसके साथ बिल्कुल मैच हो गया, है ना, हुआ ना, ये इसके साथ मैच हो गया। ये पार्ट्स में मैंने जब किया तो जहाँ जहाँ पर मैच होंगे वो हमें सिमिलैरिटी बताएगा कि कितनी सिमिलैरिटी है। तो ब्रेक सीक्वेंस इन स्मॉलर फ्रैगमेंट कंपेयर विद डाटाबेस सीक्वेंसेस रेटिफाई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इन मैचेस। तो मैचेस हमें पता चल जाएंगे कहाँ पर क्या चीज़ मैच हो रही है, कौन सा सीक्वेंस कौन से जीन के साथ मैच हो रहा है, कौन से सीक्वेंस का कौन सा जीन किस जीन के साथ मैच हो रहा है। तो मोटिव एंड पैटर्न डिस्कवरी, मोटिव एंड पैटर्न डिस्कवरी में मोटिव आर शॉर्ट कंजर्व सीक्वेंस। मोटिव क्या होता है, शॉर्ट कंजर्व सीक्वेंस। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक शॉर्ट कंजर्व सीक्वेंस है, ठीक है, एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस। इसके बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन हैं, है ना, ये डीएनए सीक्वेंस के बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं। तो इसकी एक्टिव साइट को देख लिया इन प्रोटीन्स, हम एक्टिव साइट को देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं रेगुलरी एलिमेंट्स क्या हैं डीएनए के, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में एवोल्यूशनरी स्टडी कर सकते हैं अमंग ऑर्गेनिजम्स। अप्रोचेस क्या होती हैं, सीक्वेंस को अलाइनमेंट किया, उसके बाद में उसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया और ट्री बना दिया। फर्स्ट स्टेप हमने सीक्वेंस को एनालिसिस करना सीखना है, उसके बाद डिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसके बीच का, उसके बाद ट्री बनाना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रेडिक्शन, प्रेडिक्ट कर सकते हैं सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डोमेन्स और एक्टिव साइट को भी देख सकते हैं। अब बारी आई सीक्वेंस अलाइनमेंट की। सीक्वेंस अलाइनमेंट इज द प्रोसेस of arranging sequence in such a way that maximum similarity is achieved। हम सीक्वेंस को ऐसे देखेंगे कि मैक्सिमम सिमिलैरिटी अचीव हो जाए। अगर मैं ऐसे रखूँ, ये मेरा क्वेरी सीक्वेंस मैंने दूसरे सीक्वेंस के साथ करना था, अगर मैं इसको ऐसे रखूँगी तो मैक्सिमम सिमिलैरिटी नहीं आ रही, ऐसे रखूँगी तो भी नहीं आ रही, ये ऐसे रखूँगी तो भी नहीं आ रही, ऐसा प्रॉपर करूँगी तो ही देखो प्रॉपर सिमिलैरिटी शो हो रही है, 100% शो हो रही है। अब तो हम मैक्सिमम सिमिलैरिटी अचीव करेंगे, जो कि रिवील करता है जब हम मैक्सिमम सिमिलैरिटी के साथ देखेंगे किसी सीक्वेंस को कंपेयर करके, तो हमें उसकी फंक्शंस पता चल जाएंगे, उसके स्ट्रक्चरल एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा। डीएनए सीक्वेंसेस, प्रोटीन सीक्वेंसेस, आरएनए सीक्वेंसेस। तो स्कोरिंग सिस्टम होता है अलाइनमेंट में। ये अलाइनमेंट हो गया मतलब ये पूरा का पूरा मैच करें। ये मेरी क्वेरी डीएनए था, ये मेरा डाटाबेस में कोई पड़ा डीएनए था जिसके साथ मैंने कंपेयर किया। तो अब मैं इसको कितना स्कोर दूंगी, बिकॉज ये 100% मैच हो रहा है तो मेरा स्कोर होगा 100। अगर ये मेरा स्कोर अगर ये मैच नहीं हो रहा होता, फॉर एग्जाम्पल ये मैच नहीं हो रहा समझो, है ना, तो मैं इसको दूंगी ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये इस चीज़ का डिफरेंस है, तो मैं इसको स्कोरिंग दे दूंगी 90 80 इस हिसाब से। मैं एग्जांपल बता रही हूँ, रियल में हम 0 स्कोर देते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। तो ये एक पॉजिटिव, अगर मैच हो रहा है तो हम पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हैं, अगर मिसमैच हो रहा है तो हम उसमें नेगेटिव वैल्यू देंगे स्कोर में, अगर गैप है तो भी नेगेटिव वैल्यू दूंगी। तो गैप कितने टाइप्स के होते हैं, गैप ओपनिंग पेनल्टी, गैप एक्सटेंशन पेनल्टी। कि मेरा ये अब ध्यान से समझना, ये यहाँ पर गैप आ गया, दो सीक्वेंसेस के बीच में ये गैप आ गया, तो ये जो गैप है, गैप की पेनल्टी पड़ेगी, गैप की पेनल्टी पड़ेगी।
ये गैप ओपनिंग पेनाल्टी होगी कि एक बार गैप है। अगर गैप के बाद भी गैप हो, उसके बाद भी गैप हो, उसके बाद भी गैप हो, तो हम इसको बोलते हैं गैप एक्सटेंशन पेनाल्टी। गैप एक्सटेंशन पेनाल्टी, इसमें हमने नेगेटिव स्कोर पहले हमने गैप ओपनिंग में दिया था। फॉर एग्जांपल जब एक ही गैप था तो हमने 2 स्कोर दिया। अब अगर गैप ओपनिंग है, बार बार कोई गैप है, तो हम उसको स्कोर देंगे 3 या 2, मतलब उसका अलग स्कोर होगा। अब होती है ग्लोबल अलाइनमेंट। टाइप्स होती है अलाइनमेंट की। ग्लोबल अलाइनमेंट एक मेथड है। तो ग्लोबल अलाइनमेंट, लोकल अलाइनमेंट और ग्लोबल अलाइनमेंट होती है। आई थिंक लोकल अलाइनमेंट, वेयर इज लोकल अलाइनमेंट? चलो मैं बताती हूँ लोकल अलाइनमेंट क्या होती है। लोकल अलाइनमेंट में अपनी एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज के साथ सेम स्पीशीज में थोड़े से रीजन को कंपेयर किया। मतलब मैंने एक पेन को, ये वाले पेन को इसके साथ कंपेयर किया। अब मैं ग्लोबली करना चाहती हूँ। मैं पूरे के पूरे इन सभी के साथ इसको कंपेयर करूँगी। दिस इज ग्लोबल अलाइनमेंट। बहुत सारे सीक्वेंस के साथ पूरा कंपेयर किया। दिस इज ग्लोबल अलाइनमेंट। मैं आगे और बताऊंगी। अब अभी तक इतना समझो कि हम एंड टू एंड ये पूरा एंड टू एंड मैक्सिमाइज ओवरऑल सिमिलैरिटी चेक करेंगे। लोकल में सिर्फ देखेंगे कि मुझे सिर्फ चेक करना है कि इसकी निब के साथ मैच हो रही है। ये लोकल अलाइनमेंट होगी। निब और इसकी निब और इसका टिप और इसकी टिप इसके साथ मैच हो रही है, सिर्फ लोकल अलाइनमेंट। लोकल अलाइनमेंट से में लोकली सिमिलैरिटी चेक करते हैं। इसमें एल्गोरिदम यूज होता है नीडलमैन वॉनशिच। ये साइंटिस्ट था जिसने इसको दिया था नाम, और उसकी नाम के ऊपर ही ये एल्गोरिदम का नाम हुआ है। तो बेस्ड ऑन डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करती है स्कोरिंग मैट्रिक्स वो है कि जिसके हिसाब से हम स्कोरिंग देते हैं। और फाइंड करते हैं ऑप्टिमल अलाइनमेंट बाय मैक्सिमाइजिंग स्कोर। सबसे इनिशियली हमने फर्स्ट रो में कॉलम फील्ड देखी विद गैप पेनल्टी। उसके बाद हमने मैट्रिक्स को फिल कर दिया। ईच सेल इज कैलकुलेटिंग यूजिंग डायगोनल्स। तो मैच का एक स्टोर, मिसमैच का, लेफ्ट के गैप का, अप के गैप का, ट्रेस बैक, स्टार्ट फ्रॉम लास्ट सेल, ट्रेस पाथ टू फर्स्ट सेल, गिव ऑप्टिमल अलाइनमेंट। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? कंपेयरिंग होमोलोगस जीन, स्टडिंग एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन। लिमिटेशन क्या है कि ये नॉट सुटेबल है फॉर सीक्वेंस विद लो सिमिलैरिटी। कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव है। लोकल अलाइनमेंट देखो, ये अब लोकल अलाइनमेंट मुझे दिखाना था पहले। लोकल अलाइनमेंट रीजन्स हैं, आइडेंटिफाई करता है रीजन्स ऑफ हाई सिमिलैरिटी विद इन सीक्वेंस रैदर देन अलाइनिंग इंटायर सीक्वेंस। देखो ये इंटायर सीक्वेंस पे नहीं करता, ये लोकली चेक करता है। लोकल अलाइनमेंट है आइडेंटिफाई रीजन्स ऑफ हाई सिमिलैरिटी, जहाँ पर सिर्फ हाई सिमिलैरिटी होती है। ग्लोबल अलाइनमेंट एंटायर सीक्वेंस होता है फ्रॉम एंड टू एंड। इसका एल्गोरिदम का नाम है स्मिथ वाटरमैन। इसकी थ्योरी दी थी कि ये डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करता है। नेगेटिव स्कोर्स आर रिप्लेस्ड विद जीरो। यहाँ पर हम नेगेटिव स्कोर को जीरो के साथ देते हैं। नेगेटिव स्कोर जीरो होता है। फोकस इज ऑन हाई स्कोरिंग लोकल रीजन्स। इसके स्टेप है इनिशियलाइज मैट्रिक्स विद जीरो, फिल मैट्रिक्स करते हैं स्कोरिंग स्कीम के साथ। उसके बाद हाई स्कोर देते हैं मैट्रिक्स को। उसके बाद ट्रेस बैक करते हैं स्कोर को, बिकम जीरो। डिटेक्ट कंजर्व्ड रीजन, कंपेयर डिस्टेंसली रिलेटेड सीक्वेंसेस, मोर सेंसिटिव देन ग्लोबल अलाइनमेंट, आइडेंटिफाई बायोलॉजिकल एलिमेंट रीजन। उसके बाद हमारे पास है डॉट प्लॉट मेथड। ये ग्राफिकल टेक्निक है जो दो सीक्वेंसेस को
प्लॉट करने में सिमिलैरिटीज बताती है। कंस्ट्रक्शन की है, राइट वन सीक्वेंस हॉरिजॉन्टली, लाइक मैंने ए यू जी, ये में RNA के सीक्वेंस है, AUG GCA, ठीक है। तो A के ऑपोजिट आता है T DNA में। अगर ये RNA है तो यहाँ पर आ गया U, ACCCA। ये जो नॉर्मल तरीका है क्लासिफिकेशन का, पर यहाँ पर ये काम नहीं आता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो मैंने ये AUGC लिया, ये मेरा पहला सीक्वेंस था। अब मैं दूसरा सीक्वेंस यहीं पर हॉरिजॉन्टली लिखा मैंने, ये मैं वर्टिकली लिखूंगी AUCC। तो जहाँ पर मेरा मैच होगा, यानी कि ए के साथ मैच हो रहा है, मैं पॉइंट लगा दूंगी। जहाँ पर यू मैच हो रहा है वहाँ पर पॉइंट लगा दूंगी। जिस जगह पर GC मैच ही नहीं हो रही, C मैच हो रहा है, C, तो ये प्लॉट बनेगा, ग्राफ का प्लॉट बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वो राइट वन सीक्वेंस हॉरिजॉन्टली एंड अदर वर्टिकली, ड्रॉ प्लॉट वेयर रेडियस इज मैच। जहाँ पर मैच हो रहे हैं वहाँ पर एक पॉइंट या प्लॉट लगा देना है, डॉट लगा देनी है, और पैटर्न को एनालाइज करना है। ये डॉट का जो पैटर्न बनेगा इसको एनालाइज करना है। इसकी इंटरप्रिटेशन है, अगर स्ट्रेट लाइन बनती है तो ज़्यादा सिमिलैरिटी है, अगर इंटरप्रेटेड डायगोनल बन रही है मतलब म्यूटेशन है, या फिर इंटरसेक्शन है, या फिर पैरेलल, अगर पैरेलल डायगोनल्स बन रहे हैं तो रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं, अगर रैंडम डॉट्स लग रही हैं तो सिमिलैरिटी नहीं है। एडवांस डॉट प्लॉट, ये एक मेथड है जिसमें विंडो साइज के ट्यूपल यूज़ करते हैं, जो कि रिड्यूस करता है नॉइस को, क्लैरिटी इम्प्रूव करता है। एडवांटेजेस क्या है कि सिंपल विजुअलाइजेशन करते हैं, डिटेक्ट रिपीट इन्वर्जन, लिमिटेशन नॉन क्वांटिटी, डिफिकल्ट फॉर नॉन। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक एल्गोरिथमिक प्रोग्रामिंग का मेथड है जो सॉल्व करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में बाय उनको ब्रेक करता है सिंपलर सब प्रॉब्लम्स में। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक एल्गोरिथमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच है जो सॉल्व करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपलर सब प्रॉब्लम्स में क्रिएट करके सोल्यूशन बनाता है। प्रिंसिपल क्या, ऑप्टिमल अलाइनमेंट करता है, बिल्ट फ्रॉम ऑप्टिमल सब अलाइनमेंट्स, यूजेस रिकरेंस रिलेशंस। स्कोरिंग मैट्रिक्स को की कंपोनेंट्स क्या, स्कोरिंग मैट्रिक्स, रिकरेंस रिलेशन, ट्रेस बैक पाथ। देखो हमने स्कोर दिया, स्कोर अलाइनमेंट कर दिया स्कोर का, स्कोर इज अलाइनमेंट स्कोर, रिकरेंस रिलेशन, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ईच सेल बेस्ड ऑन मैच और मिसमैच। देखो यहाँ ऐसे करके एक ये सेल सिस्टम बना लेता है, ऐसे बॉक्सेस होते हैं। अगर यहाँ पर मैंने सीक्वेंस लिखा ए ए ए ए ए ए ए टी, ठीक है, ए से मैच हो रही है पॉइंट, ए टी से मैच नहीं हो रहा, टी से ए भी नहीं मैच हो रहा, तो यहाँ पर स्कोर देते हैं, ए से मैच हो रहा है 2, ए टी से नहीं मैच हो रहा है 0 0 -1 -2, ऐसे करके स्कोर देते हैं। तो जब ये मैच हो जाते हैं और मिसमैच होते हैं और गैप आता है इनमें, तो हम पेनल्टीज लगाते हैं। तो ट्रेस बैक पाथ के साथ हम ऑप्टिमल अलाइनमेंट चेक कर पाते हैं। मैथमेटिकल कंसेप्ट के स्कोर्स आई ओवर जे मैक्स ऑफ डायगोनल प्लस मैच प्लस मैच, लेफ्ट प्लस गैप, अप प्लस गैप। लेफ्ट में गैप कितना है, अप में गैप कितना है। अब टाइप्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग में नीडलमैन स्विच आती है जो कि ग्लोबल अलाइनमेंट है, स्मिथ एंड वाटरमैन लोकल अलाइनमेंट है। ऑप्टिमल अलाइनमेंट देते हैं, फ्लेक्सिबल है स्कोरिंग के लिए। लिमिटेशन की है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0 mm/n, हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट। डॉट प्लॉट में ग्राफिकल विजुअल कंपेरेंस, ग्लोबल में एग्जैक्ट सिंगल सीक्वेंस में रीजन स्पेसिफिक सीक्वेंस। वेट अ सेकेंड।
एप्लीकेशंस ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस, जीन का फंक्शन प्रेडिक्ट करने में, प्रोटीन फंक्शन में प्रेडिक्शन करने में, ड्रग टारगेट आइडेंटिफिकेशन करने में, एवोल्यूशनरी स्टडीज़ करने में, डिसीज मेडिसिन एनालिसिस में। देखो कितनी एग्जाम्पल हैं, 1 2, ये एप्लीकेशन हैं। डिसीज मेडिसिन, एवोल्यूशनरी, ड्रग टारगेट, प्रोटीन फंक्शन, जीन फंक्शन, ये हो गया। अब उसके बाद अगर हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट देखें, और सेकेंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। Multiple sequence alignment is a computational technique used to align two or more biological sequences, DNA RNA, so that homologous reduce and arrange in columns. So it is used to identify evolutionary relationships, conserve region fundamental and similarity. Core concept क्या है, जो homologous sequence होंगे शेयर करेंगे common ancestor, sorry for camera, common ancestor, जो अलाइनमेंट जहाँ पर मैक्सिमाइज होगी, मैचेस बनेंगे, कंजर्व सीक्वेंसेस बनेंगे, और जहाँ पर मिनिमाइज बनेगी, जहाँ पर गैप होंगे, मिसमैच होंगे। तो थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ एमएससी किया है। होमोलॉजी और सिमिलरिटी में क्या फ़र्क है, ये हम देखते हैं। होमोलॉजी होती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो कि क्वालिटेटिव है, और सिमिलरिटी होती है मेजरेबल, क्वांटिटेटिव होती है। एमएस से यूज सिमिलरिटी टू इन्फर होमोलॉजी। कंपटीशन कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कंपटीशन कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है एमएसए में, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में। एनपी हार्ड प्रॉब्लम होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एल का मतलब है लेंथ, सीक्वेंस की लेंथ कितनी है। एन का मतलब है नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कितने हैं। सो जीरो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जीरो अपन एल अपन एन, लेंथ ऑफ सीक्वेंस, नंबर ऑफ सीक्वेंस। Therefore heuristic methods are used. heuristic method हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में यूज़ करते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। अब स्कोरिंग सिस्टम क्या है एमएससी में, हम वो देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स होता है पैम ब्लॉसम, जो स्कोर देते हैं। तो पैम पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन होता है बेस्ड ऑन ग्लोबल अलाइनमेंट, derived from cross related sequence, use evolutionary model, higher PAM more evolutionary distance, जितना कम पैम का स्कोर होगा उतनी एवोल्यूशनरी डिस्टेंस कम होगा। ब्लॉसम ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स है, जो कि लोकल कंजर्व रीजन पर बेस्ड है, derived from रियल प्रोटीन डाटा, वर्क फॉर डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। हायर ब्लॉसम मतलब हायर सेंसिटिविटी। अब गैप पेनल्टीज क्या होती हैं, पेनल्टीज इक्वल टू गैप ओपनिंग प्लस लेंथ प्लस इंटू एक्सटेंशन, रिफ्लेक्ट बायोलॉजिकल इंसर्शन और डिसीजन। तो फाइन गैप पेनल्टी हम कहीं देख पाएंगे, जो हमें पता लगेगा कि कितने सीक्वेंस न्यूली इंसर्टेड हैं जो म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं, और कितने पुराने जो डिलीट हो चुके हैं। तो सम ऑफ पास इज इक्वल टू सम ऑफ पेयर इज इक्वल टू एसपी स्कोर। एसपी स्कोर इज इक्वल टू स्कोर अपन आई अपॉन जे, आई डॉट सॉरी आई कॉमा जे। मोस्ट कॉमनली यूज स्कोरिंग मेथड ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट अल्ट्रा डिटेल्ड, प्रोग्रेसिव होता है, इटरेटिव होते हैं, कंसिस्टेंसी बेस्ड होते हैं, प्रोफाइल बेस्ड होते हैं, हिडन मार्कन मॉडल मेथड होते हैं। तो मल्टीपल स्कोरिंग के मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में प्रोग्रेसिव मेथड होते हैं। आई एम सॉरी फॉर कैमरा। अलाइन सीक्वेंसेस स्टेप बाय स्टेप यूजिंग गाइड ट्री, पेयरवाइज अलाइनमेंट, डिस्टेंस मैट्रिक, गाइड ट्री, OPGMA, प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट। प्रोफाइल अलाइनमेंट करते हैं अलाइन ग्रुप ऑफ स्टडीज। एडवांटेज क्या है, फास्ट है, वाइडली यूज है। प्रोग्रेसिव मेथड जो है वो वाइडली यूज है, एरर प्रोपेगेट करते हैं, डिपेंडेंट गाइड ट्री। सीक्वेंसेस जो होते हैं पेयरवाइज सीक्वेंसेस वाई, उनकी पेयरवाइज अलाइनमेंट किया, ई डिस्टेंस मैट्रिक्स देखा, गाइड ट्री बनाया, प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट होगी। इटरेटिव अलाइनमेंट वो होती है जिसमें हम अलाइनमेंट रिफाइंड कम्प्लीटली, हम सीक्वेंस को रीअलाइन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं।
यहाँ पर तो हमने नॉर्मली देखा कि एक सीक्वेंस दूसरे के सीक्वेंस के साथ कितना मैच करता है। अब हम देखेंगे कि हम इस सीक्वेंस में से क्या हटा दें कि ये दूसरे सीक्वेंस के साथ परफेक्टली मैच हो। वो इटरेटिव मेथड है। इसमें मसलन मैप्ड आते हैं, रिमूव सीक्वेंसेस, रियलाइन, इम्प्रूव। तो इसका एडवांटेज क्या है, हाई एक्यूरेसी देता है। कंसिस्टेंसी बेस्ड मेथड, मल्टीपल अलाइनमेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल टी कॉफ़ी, वेरी एक्यूरेट टी कॉफ़ी। प्रोफाइल बेस्ड अलाइनमेंट, प्रोफाइल में क्या होता है कि कंसेप्ट क्या है, अलाइन करता है सीक्वेंस टू प्रोफाइल प्रोटीन की फैमिलीज के साथ। हिडन मार्कऑफ मेथड प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है जो कि मैच, इंसर्ट और डिलीट को देखता है। प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिटी शो करता है। एल्गोरिथम विबटॉग, मल्टी डायमेंशनल डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये एक्सटेंशन होती है पेयरवाइज डायनेमिक्स की प्रोग्रामिंग में। मल्टीपल डायमेंशनल डायनेमिक प्रोग्रामिंग में एक्सटेंशन होती है पेयरवाइज डायनामिक्स की प्रोग्रामिंग ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस फॉर सीक्वेंस। ये 3D मैट्रिक्स यूज करता है फॉर एन सीक्वेंसेस, मतलब जितने ज़्यादा सीक्वेंस होंगे उतने ज़्यादा डायमेंशनल मैट्रिक्स होंगे। लिमिटेशन, कंप्यूटेशनल इनफीजिबल, एक्सपोनेंशियली कॉम्प्लेक्सिटी। Exact multiple sequence alignment using multi-dimensional dynamic programming is not star alignment इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। ये चूज करता है वन सेंट्रल सीक्वेंस, अलाइन करता है ऑल सीक्वेंस टू इट। एक सेंट्रल सीक्वेंस लेता है, उसके साथ बहुत अलाइन कर देता है, कैलकुलेट करता है पेयर स्कोर्स को। उसके बाद सेलेक्ट करता है हाई स्कोरिंग सीक्वेंसेस, अलाइन करता है सिंपल है, फास्ट है, डिपेंड करता है सेंट्रल सीक्वेंसेस की चॉइसेस पर। अब स्कोरिंग फंक्शन इन एमएसए देखते हैं। स्कोरिंग फंक्शन में सम ऑफ पेयर्स का स्कोर, टोटल अलाइनमेंट स्कोर, सम ऑफ ऑल पेयर स्कोर्स। कॉलम स्कोर देखते हैं इसमें हम, इवैल्यूएट, कंजर्वेटिव। दीपी तू तो चुप रह।